کہ جب یہ نشانی ظاہر ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ قیامت بالکل ہی قریب آ چکی ہے۔ لیکن آج جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں اس میں قیامت کی بہت ساری نشانیاں ایسی ہیں جو پوری ہو چکی ہے، اور ان میں سے کچھ نشانیاں ایسی بھی ہیں جن کا پورا ہونا ابھی باقی ہے۔ دوستو، آپ سبھی کو معلوم ہے کہ فلسطین میں کیا حالات ہو رہے ہیں، کیسے وہاں دن پہ دن حالات بگڑتے جا رہے ہیں، معصوم بچوں کا قتل عام ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن ان سب کے بیچ ایک کام اور ہو رہا ہے وہاں پر، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان کیا تھا کہ قیامت کی نشانیاں جو ظاہر ہوں گی وہ بھی وہاں پر ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ان میں سے ایک نشانی وہاں پر پوری طرح سے ظاہر ہو چکی ہے۔ وہ کیا نشانی ہے وہ ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ ہماری ویڈیو میں لاسٹ تک بنے رہے، دیکھیے آخر کیا وہ نشانی ہے۔ لیکن جہاں تک مجھے پتا ہے، کچھ نشانیوں میں سے کچھ جو مجھے پتا ہے، جیسے کہ بیت المقدس کا فتح کر لینا عیسائیوں کا، اور اس پر ہیکل سلیمانی بنانا، اور پھر دجال کو بٹھانا، اور پھر جب امام مہدی آئے گے تو وہ بیت المقدس کو فتح کریں گے۔ تو دیکھیے اس ویڈیو میں کون سی وہ نشانی ہے جو پوری ہو چکی ہے اس وقت۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج ہم بات کرنے والے ہیں فلسطین میں ظاہر ہونے والی قیامت کی ایک ایسی بڑی نشانی کے بارے میں کہ جس کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا۔ مطلب کہ اس نشانی کو آج ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، جس کو دیکھتے ہوئے یہی لگ رہا ہے کہ قیامت بہت ہی قریب آ چکی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو قیامت کے بارے میں 50 ایسی نشانیاں بتائیں گے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا، جن میں سے آج بہت ساری نشانیاں ایسی ہیں جو ظاہر ہو چکی ہے، اور کچھ نشانیاں ایسی بھی ہیں جو ابھی ظاہر ہونا باقی ہے۔ پیارے دوستو، قیامت بہت جلد آنے والی ہے، اسی لیے آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ آپ اس کو پورا آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے تو آپ کو بتا دیں کہ قیامت کا دن اس دن کو کہتے ہیں جس دن سارے انسان، جانور، پنچھی، درندے، یہاں تک کہ جن جن چیزوں کے اندر جان موجود ہے سب کے سب مر جائیں گے۔ پوری دنیا ختم ہو جائے گی، پہاڑ روئی کی طرح اڑتے پھریں گے، ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے، اور ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی۔ دوستو، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے اس خوفناک دن کے بارے میں بتایا کہ قیامت کا دن ضرور آئے گا، جس دن کے آنے سے پہلے پہلے ہی لوگوں کو اپنے گناہوں کی معافی اور اللہ سے توبہ کر لینی چاہیے۔ قرآن پاک میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن سورج زمین کے اتنا قریب آ جائے گا، یعنی اتنا سامنے آ جائے گا کہ زمین پیتل کی بن جائے گی، اور وہ دن جمعے کا دن ہوگا، محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی۔ دوستوں، بیت المقدس انبیاء اکرام کی سرزمین ہے جو فلسطین میں موجود ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بیت المقدس اس دنیا میں بنائی گئی دوسری مسجد ہے، اور یہ مکہ اور مدینہ کے بعد مسلمانوں کے لیے تیسری سب سے مقدس اور پاک جگہ ہے۔ اور یہی نہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 16 یا 17 مہینوں تک اسی مسجد کی طرف، یعنی کہ مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز بھی پڑھی ہے۔ تو اس سے یہ صاف ہو جاتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی کو اس مسجد سے بے انتہا محبت رہی ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ وہی مقدس اور پاک جگہ ہے جہاں سے قیامت کی بڑی نشانیوں کی شروعات ہوگی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملک شام کی ایک جامع مسجد کی مینار پر آسمان سے اتریں گے، اور فلسطین کی ایک جگہ جسے باب لوط کہا جاتا ہے، وہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا قتل کریں گے، یعنی دجال کو مار ڈالیں گے۔ اور یہی نہیں، اسی شہر سے یاجوج ماجوج کا دنگا فساد بھی شروع ہوگا، جس کے بارے میں ہم پچھلے ایک ویڈیو میں بات کر چکے ہیں۔ اور بڑے بڑے علماء اکرام یہ بات بھی لکھتے ہیں کہ بیت المقدس پر یہودیوں کا قبضہ کرنا بھی قیامت کے قریب ہونے کی ایک نشانی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले क़यामत की कुछ ऐसी निशानियों के बारे में बताई थी, जिनके बारे में आपने फरमाया था कि जब ये निशानी जाहिर होने लगे तो समझ लेना कि क़यामत बिल्कुल ही करीब आ चुकी है। लेकिन आज जिस ज़माने से हम गुजर रहे हैं, इसमें क़यामत की बहुत सारी निशानियां ऐसी हैं जो पूरी हो चुकी है, और उनमें से कुछ निशानियां ऐसी भी हैं जिनका पूरा होना अभी बाकी है। लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी ने क़यामत को लेकर जो निशानियां बैतुल मुक़द्दस के बारे में बयान फरमाई है, वो आज लगभग पूरी होती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद दज्जाल आएगा। याद रखें, इजराइल का फिलिस्तीनियों पर हमला करना और इसके बाद बैतुल मुक़द्दस पर अपना कब्जा करने की कोशिश करना एक बहुत बड़ी तबाही की तरफ इशारा है। कहा जा रहा है कि यहूदी किसी भी तरह मुसलमानों का पहला किबला यानी मस्जिद अल अक्सा को शहीद करके वहां हैकल सुलेमानी बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हैकल सुलेमानी बनाने के बाद ही उनका मसीहा दज्जाल उनके बीच आएगा, जो कि क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। यही वजह है कि इजरायली यहूदियों का हमेशा से यही मंसूबा रहा है, हमेशा से ही यही कोशिश रहा है कि वो कैसे भी करके फिलिस्तीनियों पर अपना कब्जा कर लें। इसी के हिसाब से वो काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पिछले कई सालों में इजरायली यहूदी फिलिस्तीनियों पर जुल्म सितम कर रही है। आज तक इन्होंने ना जाने कितने ही फिलिस्तीनियों के घर उजाड़ दिए हैं। इजरायली लोग फिलिस्तीनियों को इस तरह कमजोर करने में लगे हुए हैं कि वो अपने हक के लिए अपनी आवाज भी नहीं उठा सके। ये अब तक की फिलिस्तीनियों की 88% जमीन पर अपना कब्जा जमा चुके हैं, जबकि फिलिस्तीन का सिर्फ 12% हिस्सा ही ऐसा बचा है जो आज़ाद है। बाकी के हिस्से को इजरायली अपने में शामिल कर चुके हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरे फिलिस्तीन पर इजराइल का कब्जा हो जाएगा। दोस्तों, सुनन अबू दाऊद शरीफ में है कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत की घड़ी, उसका दिन, उसका साल और उसका सही इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला के पास है। लेकिन क़यामत की कुछ ऐसी निशानियां ज़रूर हैं कि जिनके ज़ाहिर होने के बाद क़यामत आ जाएगी। तो इस पर सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम, वो कौन कौन सी निशानियां हैं जिनके ज़ाहिर होने के बाद क़यामत आ जाएगी? तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो वक्त करीब आ रहा है और बहुत ही जल्द तुम्हारे बीच में आ जाएगा, जब सारे कुफार मुत्तहिद होकर यानी कि एक होकर तुम्हारे सामने आ जाएंगे। मतलब कि सारी कुफ्र की ताकतें एक जगह पर हो जाएंगी, और फिर वो सारे के सारे मिलकर एक दूसरे को तुम्हारे बारे में इस तरह से बुलाएंगे जैसे कि प्लेट एक हो और खाने वाले बहुत ज्यादा हों, और आपस में उन सब का इत्तेफाक भी होगा, यानी सब राजी भी होंगे। इसका मतलब ये है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि दुनिया में एक ऐसा वक्त आएगा कि उस वक्त मेरी उम्मत एक प्लेट की तरह होगी, और उसके दाएं बाएं चारों तरफ दुश्मन एक होकर आएंगे और एक दूसरे को दावत दे रहे होंगे कि तुम भी हमारे साथ मिलकर शामिल हो जाओ और मिलकर इन मुसलमानों पर हमला करो। आज ऐसा होते हुए हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज इजराइल सारे कुफार को दावत दे रहे हैं कि आओ और हमारे साथ मिलकर इन फिलिस्तीनियों का खात्मा करो। और आपने देखा भी होगा कि इजराइल की दावत पर अमेरिका जैसा देश उनकी मदद का ऐलान भी कर चुका है, और अभी तक इन लोगों ने मिलकर कितने ही फिलिस्तीनियों को तबाह बर्बाद कर चुके हैं। खैर, अल्लाह के प्यारे नबी का ये फरमान सुनकर सहाबा इकराम कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम, क्या उस वक्त हम यानी मुसलमान तादाद में बहुत कम होंगे, या हमारे पास में उस वक्त असलहा नहीं होगा यानी बारूद नहीं होगा? क्या उस वक्त हमारी ताकत बहुत कम होगी? तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, उस वक्त तुम्हारी तादाद बहुत ज़्यादा होगी, तुम्हारे पास असलहा भी होगा, बारूद भी होगा, ताकत भी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन उसके बावजूद भी तुम कमज़ोर हो जाओगे। वो इसीलिए कि उस वक्त तुम सैलाब के झाग की तरह हो जाओगे। याद रखिए, अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले जो फरमाया था वो आज सच साबित हो चुका है।
यही वजह है कि आज दुनिया के सारे इस्लामिक देश एक झाग की तरह बन गए हैं। आज मुसलमानों के पास फौजें हैं, हथियार हैं, तादाद में भी ज्यादा हैं, ताकत भी कम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी आज हम प्लेट की तरह कुफ्फार के सामने पड़े हुए हैं। और यही नहीं, इसके आगे अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मन के सीनों से तुम्हारा डर निकाल देगा और तुम्हारे दिलों में दुश्मन का डर डाल देगा, तो समझ लेना कि कयामत करीब आ चुकी है। आज ऐसा भी हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज हम अमेरिका से डर रहे हैं इसीलिए कि हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे, हमारे सारे कारोबार ठप पड़ जाएंगे। तो ऐसा भी होता हुआ आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। एक सहाबी ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उस वक्त मुसलमानों की ऐसी हालत क्यों होगी? मुसलमान इस हालत में क्यों पहुंचेंगे? इतनी कमजोर हालत में हम क्यों आ जाएंगे? तो ये सुनकर अल्लाह तबारक व ताला के प्यारे नबी ने फरमाया कि उस वक्त मुसलमान दुनिया से प्यार करने लगेंगे और मौत से डरने लगेंगे। मेरे दोस्तों, आज ऐसा भी मुसलमानों के साथ हो रहा है। आज मुसलमान दुनिया से प्यार करने लगे हैं और मौत से उन्हें नफरत हो गई है। यही वजह है कि आज मुसलमान कमज़ोर पड़ चुके हैं। याद रखें, मौजूदा हालात में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो हमला चल रहा है, ये असल में पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। लेकिन अफसोस, आज पूरी दुनिया के मुसलमानों में से कोई भी मुल्क यानी देश ऐसा नहीं है जो कि आगे बढ़कर इन फिलिस्तीनियों की मदद करे। 57 मुस्लिम देशों का ग्रुप होने के बावजूद भी कोई भी इस्लामिक मुल्क इन फिलिस्तीनियों की आवाज़ बनने के लिए तैयार नहीं है। जब अमेरिका, फ्रांस और कई कुफार देश खुल्लम खुल्ला ऐलान करके इजराइल का साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन पता नहीं आखिर इन मुस्लिम देशों की खामोशी के पीछे इनका क्या राज छुपा हुआ है। और आज इन हालात में मुसलमान ताकतवर होने के बावजूद भी कमज़ोर नज़र क्यों आ रहे हैं? आज फिलिस्तीनियों की मदद के लिए मुस्लिम देश आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये काम होने लग जाए तो फिर इंतज़ार करना उस चिंगाड़ का जो तुम्हारे दिल को दहला देगा। इसका हवाला है कंजुल उम्मल जिल्द नंबर 14 सफ़ा नंबर 513 और 14। ये 50 निशानियाँ उसमें बयान की गई है, जिनके बारे में जानकर और आज के हालातों को देखकर आप भी हैरान होने वाले हैं। नंबर 1 पर कबीरा गुनाहों को हलाल ठहराया जाएगा, यानी कि बड़े से बड़े गुनाह करके भी लोग समझेंगे कि ये हलाल है। नंबर 2, तलाक को खेल समझा जाएगा। नंबर 3, औलाद दिल की घुटन बन जाएगी। नंबर 4, शराब आम हो जाएगी। नंबर 5, अल्लाह के हुक्म को तोड़ा जाएगा। नंबर 6, माँ बाप को अपनों से दूर रखा जाने लगेगा। नंबर 7, मर्द मर्द के साथ और औरत औरत के साथ मोहब्बत करेंगे। नंबर 8, नाप तोल में कमी की जाएगी। नंबर 9, औलमा मनचाहा फतवा देंगे। नंबर 10, ज़कात बोझ बन जाएगा। नंबर 11, कुरान पाक पर सोने चांदी के गिलाफ चढ़ाए जाएंगे। नंबर 12, गैरुल्लाह की कस्में खाई जाएंगी। नंबर 13, मकान ऊंचे ऊंचे और पुख्ता यानी मजबूत बनाए जाने लगेंगे। नंबर 14, नमाजों को ज़ाया किया जाएगा यानी छोड़ा जाएगा। नंबर 15, सूद खोरी आम हो जाएगी। नंबर 16, हर काम में रिश्वत ली जाने लगेगी। नंबर 17, नाजायज़ ख्वाहिशों की तकमील की जाएगी यानी नाजायज़ ख्वाहिशों को पूरा किया जाएगा। नंबर 18, दीन को दुनिया के बदले बेचा जाएगा। नंबर 19, कुरान पाक को गाने की तरफ पढ़ा जाने लगेगा। नंबर 20, मस्जिदों को रास्ता बनाया जाएगा। नंबर 21, मर्द रेशम का लिबास पहनेंगे। नंबर 22, जुल्म हद से बढ़ जाएगा। नंबर 23, जिना की कसरत की जाएगी यानी जिना आम हो जाएगी। नंबर 24, मस्जिदें सजाई जाने लगेंगी। नंबर 25, दिल फासिद यानी बुरा हो जाएंगे। नंबर 26, लोग घर में नाच गाने वाली रखेंगे। नंबर 27, नाच गाने हलाल किए जाएंगे। नंबर 28, मर्द अपनी बीवी के इताअत यानी सेवा करेंगे। नंबर 29, माँ बाप की नाफरमानी की जाने लगेंगी। नंबर 30, अमानत में खयानत ठहराया जाएगा
नंबर 31, खयानत को अमानतदार समझा जाएगा। नंबर 32, बारिश कम होने लगेंगी। नंबर 33, बड़े ओहदे पर ऐसे लोग होंगे जो उस ओहदे के लायक ना होंगे। नंबर 34, औलमा पैसों के लिए अमीरों की चाकरी करेंगे। नंबर 35, महीने घट जाएंगे। नंबर 36, वादा खिलाफी आम हो जाएगी। नंबर 37, औरत और मर्द शरीके तिजारत हो जाएंगे। नंबर 38, औरतें घोड़ों पर बैठना शुरू कर देंगी। नंबर 39, झूठी गवाही दी जाएगी। नंबर 40, रिश्तों को काटा जाएगा। नंबर 41, ओहदों को जायदाद की तरह बांटा जाएगा। नंबर 42, गुजरे हुए लोगों को गालियां दी जाएंगी। नंबर 43, आदमी की इज्जत उनके शर यानी खराबी के डर से की जाएगी। नंबर 44, सिपाहियों की कसरत होगी। नंबर 45, जाहिल लोग मेंबर पर बैठेंगे। नंबर 46, दुनिया के लिए इल्म दीन हासिल किया जाएगा। नंबर 47, कुरान पाक को तिजारत बनाया जाएगा। नंबर 48, जुआ आम हो जाएगा। नंबर 49, मोहताज को ज़कात नहीं दी जाएगी। नंबर 50, बेगुनाहों का कत्ले आम हो जाएगा। दोस्तों, हर मुसलमानों का ये अकीदा है कि एक दिन क़यामत ज़रूर कायम होगी और हर इंसान को अपनी पूरी ज़िंदगी का हिसाब देना होगा। और वो दिन इंसान के लिए ऐसा हौलनाक होगा कि लफ्ज़ों में उसे बयान नहीं किया जा सकता। उस वक्त हर इंसान अपने अपने फिक्र में होगा। दुनिया में किसी से 1000 मोहब्बत हो मगर उस दिन कुछ काम नहीं आएगी। बाप अपने बेटे को पहचानता होगा लेकिन उसकी मुसीबत को देखकर उसको कोई फिक्र नहीं होगी, बल्कि वो उससे अपना दामन बचाने की कोशिश में लगा होगा। सारे इंसानों का आपस में यही हाल होगा। कुरान करीम ने क़यामत के हौलनाक मंजर और आपसी अफरा तफरी को इस तरह बयान किया है। आखिरकार जब वो कान को बहरा देने वाली आवाज़ बुलंद होगी तो उस रोज़ आदमी अपने भाई और अपनी माँ, अपने बाप और अपनी बीवी, अपनी औलाद से भी भागता फिरेगा। उनमें से हर शख्स पर उस दिन ऐसा वक्त आ पड़ेगा कि उसे अपने सिवाय किसी का होश नहीं होगा। कुछ चेहरे उस वक्त दमक रहे होंगे, खुश मिजाज होंगे, और कुछ चेहरों पर उस दिन खाक उड़ रही होगी, उस पर स्याही चढ़ी होगी, और वो यही काफिर लोग होंगे। दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन हर मालदार और गरीब आदमी ये तमन्ना करेगा कि काश उसको दुनिया में सिर्फ गुजारा करने की रोजी दी जाती। तो दोस्तों, इन बातों को देखते हुए तो यही लगता है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले क़यामत की जो जो निशानियां बयान की है वो आज लगभग पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। इसको देखते हुए यही लग रहा है कि क़यामत करीब आ चुकी है और बहुत ही जल्द क़यामत आने वाली है। अभी आपने जितने भी 50 निशानियां सुनी वो लगभग सभी के सभी निशानी आज के दौर में पूरी होती हुई, जाहिर होती हुई नजर आ रही है। इसीलिए दोस्तों, हमें अपनी जिंदगी में सुधार पैदा करना होगा। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला फिलिस्तीनी मुसलमानों की और मस्जिद अक्सा की गैबी मदद फरमाए और जितने भी मुसलमान देश हैं लगभग 57 देशों को कुफार के खिलाफ एकजुट होने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों, देखा आपने क़यामत की जितनी भी निशानियाँ इस वीडियो में बताई गई है वो करीब सारी पूरी हो चुकी हैं। कुछ निशानियाँ उनमें होगी जो नहीं पूरी होगी, लेकिन मुझे जो लगता है वो सभी निशानियाँ पूरी हो चुकी। और फ़िलिस्तीन पर भी यहूदियों ने कब्ज़ा कर लिया है। जुल्म आम हो रहा है, सूद जुआ आम हो रहा है और मज़लूमों पर जुल्म किया जा रहा है। ये सभी बातें आम हो चुकी है और यही क़यामत की निशानियाँ हैं जो कि पूरी होती हुई नज़र आ रही है। इसीलिए दोस्तों, अपने गुनाहों से तौबा करो, हक़ और सच के रास्ते पर चलो। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।